Hello, my students. So, welcome back to the channel. It's called as Mathematics by Rumina, and today we're going to discuss your remaining questions of 1.2, 1.1, and on to question number 8 onwards. So, let's get started. So, now if I talk about the question, it says me let A and B be the sets. Show that f such that A into B tends to B into A such that f of AB is equals to BA is a bijective function. Bijective में क्या आएगा 1 1 and on 2 आएगा. Since I know I just need to prove it 1 1 and on 2, that means I'm just going to start my answer with 1 1. तो 1 1 में देखो क्या होगा यहाँ पे मेरे पास. I just need to take one more element. So let A comma B and C comma D belongs to A cross B. अब अच्छे से एक चीज़ ऑब्जर्व करना. यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा f of A comma B is equals to f of C comma D. That means I can just write B comma A is equals to D comma C. That means just start and comparing the ordered pair. So B is equals to D and A is equals to C. इसका मतलब क्या है बेटा कि मेरा A तो यहाँ A में था, है ना. सिंस यू नो A कॉमा B लिखा है, इसका मतलब है कि A जो है वो A को बिलोंग करता है एंड छोटा वाला B जो है वो B को बिलोंग करता है. सिमिलरली जब मैंने C और D लेट किया तो इसका मतलब था कि C जो है वो A को बिलोंग करेगा और जो D है वो B को बिलोंग करेगा. That means if I just want to rearrange it a little bit, I can say that I can just write B upon A which is equals to. अब देखो मुझे पता है ये B upon A है, B इधर बिलोंग करता है B को, A बिलोंग करता है A को. सिमिलरली D कॉमा C है, मुझे पता है D बिलोंग किसको करता है B को एंड C बिलोंग करता है A को. सो दैट मीन्स यहाँ पे भी B कॉमा A आया, यहाँ पे भी B कॉमा A आ गया. सो देयरफॉर आई कैन से दैट येस गिवन दिस थिंग इज 1 to 1. आई होप जो बिलोंग वाला कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हुआ होगा. बेसिकली मैंने बस देखा कहाँ कहाँ बिलोंग करते हैं, बिकॉज मुझे पता है ये जो पूरा फंक्शन था ये मेरा A क्रॉस B को बिलोंग करना चाहिए था और जो रिजल्टेंट आया है वो बिलोंग करना चाहिए था मेरा B क्रॉस A को जो कर रहा है. Therefore 1 1. Similarly we are also going to prove it on 2. So for on 2 if you just want you can just do one working. Since I know that fx is equals to y, जिधर मेरा x क्या होगा a comma b और a comma b कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसमें से बिलोंग करेगा विच इज़ a क्रॉस b. सिमिलरली y के इक्वल आ रहा है और y क्या बिलोंग करेगा b कॉमा a, जो b कॉमा a क्या होगा b क्रॉस a. सो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, I can just write codomain is equals to range and therefore it is going to be my onto function. अगर ये clear नहीं हो रहा है so you can even write the theorem which like either write the proof which I have told you, that is for all y belongs to the codomain which is b cross a, there exists x, that is your there exists x belongs to a comma b which is your domain under the function f of a comma b is equals to b comma a and therefore it is a onto function, hence proof. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पक्का क्लियर हो गया होगा. नहीं क्लियर हुआ प्लीज कमेंट कर देना, क्लियर कर दूंगी. नाउ द या वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज डन 1 1 on to therefore bijective. क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं. वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो प्लीज़ बहुत अच्छे से समझना. लेट एफ सच दैट n टेंड्स टू n डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल टू दिस व्हेन n इज ऑड, दिस एंड व्हेन n इज इवन. State whether the function is bijective. Justify your answer. So for bijective I know I need to start with 1 1 function. So for 1 1 function I know मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज लेनी है when my n is odd and my n is even. So when my n is odd, let's take n is equals to 1. जब मेरा n मैंने 1 लिया तो f1 क्या हो जाएगा मेरे पास, f1 would be basically equals to 1 plus 1 upon 2 which is equals to 1. Similarly when my n is even, so let's take my n as 2. सो f2 कितना आ जाएगा, दैट इज़ 2 upon 2 1. ऑलवेज रिमेंबर हमारा f(x1) हमेशा f(x2) के इक्वल आने ही आना चाहिए. सो f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2), ये तो डन हो गया बिकॉज बोथ आर इक्वल्स टू 1 बट 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2. दैट मीन्स f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) बट x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2. सो देयरफॉर देखो ये 1 1 तो नहीं है. क्लियर लॉजिक था, सिंपल था, इसको समझना. बच्चों को आई डोंट नो क्या डाउट रहता है, बट हाँ इफ़ यू आर गोइंग टू डू सच प्रूफ यू आर नेवर गोइंग टू लूज योर मार्क्स. Now let's go into proof on 2. So for on 2 I'm just going to make my arrow diagram.
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Okay, so now let's put the value of n, and we can just choose the value of n from here since we know that n belongs to the natural numbers. So I have taken 1 2 3 4 5 6 and so on. पहले मैंने 1 लिया, सिंस 1 इज अ ऑड नंबर तो यहाँ जाएगा, इट इज़ 1 + 1/2, दैट इज़ द आंसर इज़ 1. सिमिलरली जब मैंने इसको आगे सॉल्व किया, सो आई नो दैट मैंने 2 ले लिया, n = 2 एंड 2 इज़ अ इवन, सो 2/2 इज़ 1. ये भी क्या जाएगा, यहाँ जाएगा. Then I've taken 3, 3 is odd. So 3 + 1, that is 4, 4/2 is 2. Similarly, मैंने यहाँ पे 4 रखा, 4 is even, 4/2 is 2. That means जिसका सीक्वेंस है वो क्या बनेगा, इसका सीक्वेंस ऐसा कुछ बनेगा. And for the next number is going to repeat. That means कि मेरे पास हर एक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन की क्या है, एक 2 प्री इमेजेस है. ठीक है. सो इसलिए ऑब्वियसली इट इज़ नॉट 1 1. मैंने यहाँ देखा नहीं, मैंने यहाँ नॉट इक्वल टू लिख दिया, शायद नॉट 1 1 भी बोला होगा, बस लिखना भूल गई थी. सो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, सो नॉट 1 1. एंड सिंस मुझे पता है मेरे सारे कोडोमेन्स क्या है, ऑक्यूपाइड है, सो आई विल राइट codomain is equals to n and all the codomains values are occupied, so therefore I would just say that range is equal to n. If in the paper you want, you can just show this diagram, this representation, and this codomain equals to n, range equals to n, therefore codomain is equals to range, therefore it is a onto function. That's all, hence no need to do any further thing. That's all for the calculation. Okay, you can just write therefore it is a onto function. Proof. Now let's move. If you just want to take a screenshot, just take it. And then we're going to move ahead with the question number 10. Let a equals to r minus 3 and b equals to r minus 1. Consider the function f such that a tends to be defined by fx equals to x minus 2 upon x minus 3 is f is 1 1 and on to. Justify your answer. से मुझे 1 1 and on to चेक करना है. मुझे पता है पहले मैं 1 1 चेक करूँगी. So 1 1 के लिए what condition I have, that is f of x1 is equals to f of x2, that is x1 minus 2 upon x1 minus 3 is equals to x2 minus 2 upon x2 minus 3. पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो. x1 minus 2 into x2 minus 3 is equals to x2 minus 3 into x1 minus 3, x2 minus 2 into x1 minus 3. मल्टीप्लाई करती हूँ तो पहले ये और ये मल्टीप्लाई, x1 x2 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, 3x1 minus 2x2 minus minus plus 6, x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 6. अब यहाँ पे क्या क्या मेरे पास यहाँ से बेसिकली कट रहा है वो देखते हैं. कैंसिल 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 कैंसिल. ओके, माइनस 3x1 ये यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 2x1 इज इक्वल्स टू माइनस 3x2 प्लस 2x2. ये क्या बनेगा बेसिकली मेरे पास, माइनस x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2 विच इज़ बेसिकली योर x1 इक्वल्स टू x2. सो देयरफॉर ये क्या आ गया, देयरफॉर इट इज़ 1 2 1. नाउ आई गॉट 1 1. आई जस्ट नीड टू प्रूव इट एज ऑन टू ऑल्सो. सो फॉर ऑन टू, सिंस वी नो दैट y मेरा किसके इक्वल है, x minus 2 upon x minus 3. सिंप्लीफाई एंड लेट्स ऑब्टेन द रेंज एंड द कोडोमेन. ठीक है, तो मुझे पता है अगर मैं ढंग से इस क्वेश्चन को एग्जामिन करती हूँ तो मेरे पास जो डोमेन है वो क्या होगी. ऑब्वियसली मेरा जो डोमेन है वो इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए. सो मेरा डोमेन तो यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर है, r-3 होना चाहिए था. कोडोमेन जो मुझे गिवन है वो किसके इक्वल है, कोडोमेन जो है मेरी वो इक्वल है b, और b क्या है, r-1 के इक्वल है. सो लेट्स ऑब्टेन द रेंज ऑल्सो, लेट्स ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. सो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी योर, मल्टीप्लाई कर दो, yx minus 3y minus x is equals to minus 2, which would be your yx minus x is equals to minus 2 plus 3y. यहाँ से x कॉमन ले लो, left with y minus 1 is equals to minus 2 plus 3y, that is x is equals to 3y minus 2 whole upon y minus 1. अब देखो जो मेरा यहाँ y की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स इसका रेंज क्या हो जाएगा, द रेंज फॉर दिस वुड बी r माइनस, बस y 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, सो r minus 1. दिस implies that codomain and range both are equal, and since both are equal it is going to be your onto function. That means f is 1 1 as well as onto. We have justified our answer.
Question number 11. If you just want to take a screenshot, hurry up and take it. And if I just see the next question, it says me that let f be the r tends to r be defined as fx equals to x की power 4. In the starting itself, I have explained you in question number 2 theory. If you haven't seen the before this part, just go to over that channel and please see the video. It is very interesting how to see that when the function is even, it is 1 1 and onto, and when the function is odd, what is the condition basically. Proper ढंग से explain किया गया वहाँ पे step by steps. So now let's see f such that r tends to r, and मेरे पास क्या है, मेरा जो fx है वो कहाँ पर है, fx इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 है, r टू r है. अब मुझे पता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, इट इज़ गोइंग टू बी fx1 इज इक्वल्स टू fx2. दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी x1 की पावर 4 इज इक्वल्स टू x2 की पावर 4. दैट मीन्स आई कैन जस्ट सिंपली राइट इट एज x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2. यहाँ प्लस माइनस आ गया है, सो देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज नॉट 1 1. प्लीज़ वहाँ से एक बार अच्छे से देखना, वहाँ पे मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है. सो इट इज़ नॉट 1 1, ये तो क्लियर हुआ. दैट मीन्स ये नहीं हो सकता. many one, obviously it's many one function. then ये भी नहीं हो सकता. it is neither. okay, that means B और D में से हमारा डाउट है, कोई भी इसमें से मेरा एक आंसर पक्का हो सकता है. एंड नाउ इफ़ आई जस्ट वांट टू सी कि मेरा फंक्शन जो है वो ऑन टू है या नहीं है. अब फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑन टू पे डिपेंड करेगा कि वो अगर ऑन टू है या नहीं है. ऑलवेज रिमेंबर, सिंस से मेरा MCQ टाइप है, तो यहाँ पे मैं बहुत सिंपली चीज़ों को दिखाऊंगी कि वो ऑन टू हो सकता है या नहीं हो सकता है. एंड नाउ फॉर ऑन टू फंक्शन आई जस्ट वॉन्ट सम मोर थियोरी पार्ट. मुझे पता है सिंस मेरे पास क्या है, मेरे पास r की वैल्यू है, तो दैट मीन्स जो मेरा कोड x है वो मैं अपनी कुछ भी लेट कर सकती हूँ. आई कैन जस्ट लेट माई x एज x एज -3 है ना. जस्ट मैंने अपने x को -3 लेट किया, तो मुझे पता है मेरे पास है y इक्वल्स टू x की पावर 4. इफ़ आई जस्ट वॉन्ट, आई कैन जस्ट टेक अ फोर्थ रूट ऑफ y इज इक्वल्स टू x विद प्लस माइनस. करेक्ट. अब देखो बेटा, अगर मैं चाहूँ, लेट्स टेक y के लिए मैंने ली -3, बिकॉज मुझे पता है मेरा जो r वैल्यू है, r में तो -3 रहता ही रहता है. बट जस्ट थिंक अबाउट दिस, क्या रूट में कभी -3 पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. सिंस दिस स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल, आई वुड जस्ट से इट इज नॉट ऑन टू, this is not onto, or either I can say this is a into function. So that means it is not 1 1, not onto. So that means option number D is the absolutely correct answer. It is neither 1 1 nor onto. आई होप क्लियर होगा. सिंपल कॉन्सेप्ट था, सिर्फ समझने वाली बात थी. नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है. एफ सर आर टेंस टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स 3x. चूज द करेक्ट आंसर. कुछ नहीं करना था, करेक्ट आंसर चूज़ करना है इस वाले फंक्शन का. एफ आर टू आर है, तो देखो 1 1 में तो काफ़ी सिंपल है बेटा इसको प्रूव करना. सिंस मुझे पता है fx1 इज इक्वल्स टू fx2 होगा ही होगा मेरे पास. दैट मीन्स 3x1 इज इक्वल्स टू 3x2. 3 से 3 कैंसिल हुआ, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया. देयरफॉर 1 1 तो येस बिल्कुल है. सिमिलरली वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रूव योर ऑन टू फंक्शन. सिंस मुझे पता है मेरे पास क्या आएगा, y इक्वल्स टू 3x. दैट मीन्स y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x, एंड दैट मीन्स f ऑफ x मेरा क्या है, 3 ऑफ x है. उठा के x को रिप्लेस कर दो अपने इस वाली वैल्यू से. सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 y upon 3, 3 और 3 cancel, that is equals to y. So fx is equals to y. So yes, there is a function is onto. That means my function is 1 1 and onto. So option number A is correct. This was the last question of your 1.2. We are done with the chapter. Just revise the chapter, and in the next class we're going to start with the miscellaneous part. So thank you so much children for loving me, for supporting me, at least viewing my video. I'm just hoping for some more subscribers. Till that, just stay tuned and study hard. Thank you so much. Bye bye.